Hello everyone, good morning. Welcome you back in the revision of mathematics. So from today we are going to start triangles. The most tensionful topic, isn't it? Let's reduce the tension. I'll tell you the plan of revision of triangle. Before this, let me tell you we are left with one more topic, that is linear equation. That is for sure. But you can also manage, that's not the problem. So it's an easy topic and direct topic, right? Word problems are a bit difficult, I can understand. So as soon as we complete this, we're going to jump on the linear equation topic. So why I started triangle first, because you need more practice in this triangle, okay? But good thing is about triangle especially, everything will be related to the textbook itself, okay? So especially for the topic like triangle, topic like trigonometry, a bit difficult topics, for these topics normally board as well as all the teachers do not have habit of going away from the textbook. So it's good thing, even if you complete the textbook, especially for the triangle, is almost 80 to 90% your work is done. And as well as few extra questions, if you want to prepare, you can go through the worksheet that what we have solved during the triangle topic. So those are sufficient, more than enough for you to complete your triangle topic. So what we are going to do, let me tell you, I'm going to complete the textbook, all the questions as well as theorems. So this is how I'm going to complete my revision, right? So let's continue. Let's begin the first exercise number 6.1. Let's complete it. All the circles are of course similar. Okay, circles are having different dimension, different shapes, but different sizes, but they will have same shape, so we consider they are always similar. All squares are of course always similar. All dash triangles are similar. Equilateral triangle, all polygon, which type of polygon? Regular polygon are always similar. So triangle is one of the regular polygon because its all sides and angles are equal, we call it as regular polygon. Two polygon of same number of sides are similar if the corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Okay, they are sides are supposed to be proportional, जैसे triangle में हमने देखा है, ठीक है? Two different examples of pair of similar figures, two different examples. Square is similar, your circle is similar, equilateral triangle is similar, regular hexagon, regular pentagon, anything regular polygon are always similar. Non-similar figures, rectangle and square, right? Or maybe triangle and equilateral triangle and isosceles triangle, or equilateral triangle and right angle triangle. These can be the non-similar figures. State whether the following quadrilaterals are similar or no. So they might be similar. Let us check. No, they are not similar. Why are they not similar? Because angles are not same. Okay, the simple thing, it was done. So exercise is clear. Next question देखते हैं. Next one is nothing but your BPT, based on BPT and converse of BPT. Let's understand both the questions, but before we solve the questions, let us complete the examples as well. What type of examples? Solved examples. Solved examples देखते हैं. This is the second form of BPT we discussed. It's a proof of the second form of BPT. Understand it. You are given that DE is parallel to BC, right? You're given that DE is parallel to BC, right? DE is parallel to BC. So we know that AD upon DB is equals to AE upon AC. Okay, what is asked to prove here in this case? Prove that AD upon AB, AD upon complete AB is equals to AE upon AC. That means the second form of BPT here it is asked to prove. Very rarely this question is asked. That's the reason even I stopped taking this question in the regular work. But still हम लोग वर्क करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. It's a simple thing. देखो, we know that AD upon DB is equals to AE upon EC. ठीक है? Why it is so? Of course, BPT. Done? Now what I will do, I will just reciprocal it. इसको मैं क्या करूँगा? रेसिप्रोकल करता हूँ. दैट मीन्स DB अपॉन AD. मैं क्यों रेसिप्रोकल कर रहा हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आएगा. EC अपॉन AE, ठीक है? एंड आई विल एड +1 टू बोथ द साइड. So what will happen when I get the +1 to both the side is that it will cross multiply. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन AC. AE प्लस EC अपॉन AC it would be, right? AD प्लस DB अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या होगा? AB. तो it would be AB अपॉन AD, right? AB अपॉन AD is equals to AE plus EC is AC upon AC. AE, ठीक है? AC upon AE. Clear? And this is what is required proof.
बट हाँ इट इज़ रेसिप्रोकल, अगेन यू कैन रेसिप्रोकल एंड गेट द आंसर डन। ठीक है, अभी देखते हैं ये सब हमने कैसे किया और क्यों किया। सबसे पहली चीज़, हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला टर्म दैट इज डिनोमिनेटर वो गायब हो जाता है क्योंकि आई एम एडिंग इट, एंड न्यूमरेटर इज लेफ्ट एज इट इज। चेक कर लो, ए ई इज लेफ्ट एंड ए डी इज लेफ्ट, ओके, विच इज़ एट द डिनोमिनेटर। तो जो मुझे चाहिए उसको मैं डिनोमिनेटर में रखूँगा सो दैट इट वोंट गेट कैंसल, एंड जो मुझे नहीं चाहिए जैसे कि मुझे डी बी एंड ई सी नहीं चाहिए था उसको मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, दैट्स इट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा मैं फिर से समझाता हूँ, इफ़ यू वांट टू चेक तो थोड़ा प्रॉपरली एक जगह लेके समझाता हूँ। ठीक है, अगेन वी अंडरस्टैंड इट, लेट्स नो। देख लो, ये प्रूफ है वैसे भी, इट्स नॉट अ बिग डील। देख लो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी according to BPT, right? I'm not going to present the answer. Presentation now you know very well. And now, normally if I add 1 to both the side here itself, so what will happen? AD will get vanished from here and DB will be left. Okay, तो मुझे वैसे नहीं चाहिए, DB मुझे कैंसिल होना चाहिए, AD चाहिए। जो मुझे चाहिए वो मैं डिनोमिनेटर में लाता हूँ, DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE. Now plus 1 to both the side and plus 1 to here as well. तो AD plus DB if I cross multiply upon AD is equals to EC plus AE upon AE. So it's very clear, AD plus DB is AB upon AD and here is AC upon AE. If you reciprocal it, I get the required result, AD upon AB is equals to AE upon AC, and that's the answer what I'm asked for. ठीक है ना, clear, got the point. ईजी है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वॉज वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल, अगेन इज सिंपल थिंग। देख लो, आई हैव टू प्रूव, जस्ट अ मिनट, ओके, आई हैव टू प्रूव ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये मुझे प्रूव करना है, वेरी सिंपल थिंग। आपको कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देना है सो दैट आई गेट ट्रायंगल। यहाँ पे एक ओ पॉइंट है इमेजिन, और जी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, चलो ठीक है जी ही लेते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर कि ये और ये पैरेलल है, तीनों के तीनों पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये पैरेलल, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। देख लो, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, एंड उल्टा इस ट्रायंगल में देखा जाए, द सेकेंड वन, ए जी और फ्रॉम सी आई कैन स्टार्ट सी जी अपॉन जी ए और ए जी इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ। तो ये उल्टा करें क्योंकि ये जैसे है वैसे ही ये लाते हैं, तो इफ़ आई रेसिप्रोकुलेट ए जी अपॉन सी जी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ, तो ये और ये सेम आ गया, देयरफॉर दिस एंड दिस इज सेम, तो आई कैन ईजिली डू दैट, है ना, ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इवन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। Okay, so we have here given PS upon SQ is equals to PT upon TR. This upon this equals to this upon this. तो ये क्लियर हो गया कि ये पैरेलल है, कॉन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, नेक्स्ट वन, सो आई हैव टू, आई एम गिवन दैट PST इज इक्वल्स टू PRQ, तो ये भी गिवन है। प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना पड़ेगा। इज एंगल की वजह को ट्रायंगल, और इफ आई प्रूव द ट्रायंगल बिकम आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो, लाइन इज पैरेलल जो हमने अभी भी प्रूव किया बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये और ये ऑलरेडी इक्वल है, तो देयरफॉर आर एंड क्यू विल बी इक्वल, राइट। सो इफ आर एंड क्यू आर इक्वल देन ट्रायंगल बिकम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिनिश्ड, दैट्स इट, सॉल्व्ड है। आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा, सो इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू, क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कि पैरेलल है एंड आपको फाइंड करना है रिमेनिंग साइड्स। तो आपके MCQ वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे हम इस कैटेगरी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए, जिसमें x है या फिर x सब तरफ है, एंड सो मेनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। तो प्रिपेयर करो, ये तो बहुत ही सिंपल है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC किया एंड आपको आंसर मिल जाएगा, एंड सेम फॉर द सेकेंड वन एज वेल। ट्राई करो, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
एंड द सेकंड क्वेश्चन ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू आर, तो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो इफ़ आई टेक पी क्यू आर, तो ई इज़ ऑन पी क्यू, एफ इज़ ऑन पी आर, ठीक है, एंड इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आई हैव टू चेक वेदर दीज आर पैरेलल टू दिस। तो व्हेन इट इज पैरेलल, व्हेन पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी ऑफ अपन एफ आर, ऐसा हो तो पैरेलल हो जाता है। तो वैल्यूज दिए हुए हैं, देख लो, पी इज़ 3.9, ई क्यू इज़ 3, पी एफ इज़ 3.6 एंड एफ आर इज़ 2.4। तो चेक कर लो, 3.9 अपॉन 3, 3.9 अपॉन 3 कितना होता है? तो दिस विल बी 39 अपॉन 30, 3 से डिवाइड किया तो इट वुड बी 13 अपॉन 10 मे बी, एंड पी एफ अपॉन एफ आर किया 3.6 अपॉन 2.4, मल्टीप्लाई बाई 10 किया 36 अपॉन 24, 12 3 ज़ा एंड 12 2 ज़ा, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो पी अपॉन ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर बाय कॉन्वर्स ऑफ पीपीटी। दैट्स इट। वैसे ही बाकी भी देख लो एंड यू विल रियलाइज दैट वेदर दे आर equal, ratios are equal or no. If they are equal, it is parallel. If they are not equal, it is not parallel. That's it. Very very simple. चलो आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते। इन द फिगर इन सेंस 6.18, तो ये किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देख लो। हमें करना क्या है, एल एम इज पैरेलल, गिवन इज पैरेलल टू बी सी, तो इजंट इट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। सिमिलरली ये और ये भी पैरेलल है, तो ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो इट्स वेरी क्लियर, एल अपॉन एल सी इज सेम इन बोथ द इक्वेशंस। आई गेट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एन अपॉन एन डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एन अपॉन एन डी तो प्रूव नहीं करना है हमें, देख लो। हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ बीबीडी यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, ठीक है ना, क्लियर, गेटिंग इट। नेक्स्ट वन देखते हैं, वही कैटेगरी है, देख लो। पहले डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, तो इट्स वेरी क्लियर, बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, जो यहाँ पे बी अपॉन ए सी चाहिए। सिमिलरली इफ आई चेंज द कलर एंड इफ आई टेक द अदर वन पैरेलल, जैसे कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई इन केस, तो बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा, and I'll be getting the answer because BD upon AD is same in both the equations. That's it. So I don't have to unnecessarily waste my time in this. आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते। ये भी वही कैटेगरी क्वेश्चन है। इन फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो मैंने एक भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। लेकिन रिवाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट दिस। I want you to solve these all things properly. All the exercises you should solve. And you must have forgotten it. And when things are forgotten, it becomes difficult to start it. So I just want you to initiate. I just want you to start. I just want you to begin this topic as soon as possible. So that you all will properly complete everything on time. And your PT1 score due to lockdown, due to all these situations should not get reduced. Okay? Considering that, I never do this in the regular classes. I never do that, these all things. I just ask people to just go on solving it, nothing else, and I'll just clear that out. But in this particular situation, I'm just considering that even if you are just watching the video, you should be able to solve 60 to 70% of the question if you don't even practice. Okay, considering all that, I'm just doing it. I'm just solving all the question. I'm explaining each and everything. Okay, it is really taking a lot of time. Really taking a lot of time. So I want you to टेक इट सीरियसली एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, आज इतना ही कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी का हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलो कम, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो। इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डी ई, ये जो है ये पैरेलल टू ओ क्यू है, एंड डी एफ ये पैरेलल टू ये है। तो इट्स वेरी क्लियर, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, एंड पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है ना, इट्स वेरी क्लियर। तो ये तो इक्वल है, तो पी ई अपॉन, देख लो, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, राइट, इज दिस क्लियर। देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो व्हाट डू आई गेट हियर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, फिनिश्ड, दैट्स इट, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वी हैव डन ऑल दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। इन गिवन फिगर 6.21, ओके, ठीक है, ये भी वही कैटेगरी है। चलो ट्राई करो खुद से, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देख लो, व्हाट इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है,
एंड देन वी हैव ए सी इज़ पैरेलल टू, ओके ए सी एंड ये भी पैरेलल दिया हुआ है, तो इट्स वेरी क्लियर दिस ए ओ अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन क्यू बी. सिमिलरली ए ओ अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर. तो अभी हो क्या जाएगा, ओ बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओवर हो जाएगा, देन यू गेट बी सी पैरेलल टू क्यू आर. सो वेरी सिंपल बाय कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी. मतलब पहले वाले क्वेश्चन में एंड इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स सेम थिंग, बस डायग्राम देखने के लिए अलग है और कुछ नहीं. यूजिंग 6.1 मतलब मुझे लगता है बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल. ये मिड पॉइंट थ्योरम है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको. आई एम सॉल्विंग 7th क्वेश्चन हियर. प्रूव क्या करना है, अगर एक मिड पॉइंट से जा रही हुई एक पैरेलल लाइन है, ए बी सी है, पी क्यू है, देख लो. Prove that a line drawn through midpoint of one side of the triangle, parallel to the other side, bisect the remaining side, the third side. मतलब Q is also midpoint मुझे प्रूव करना है. टू प्रूव क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन है. चलो देखते हैं प्रूफ. तो ये पैरेलल है, दैट मीन्स व्हाट, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, बीपीटी क्यू सी सॉरी बीपीटी, राइट. सो ए पी एंड पी बी तो इक्वल है, ये 1/1 हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी. तो व्हाट डू आई हैव टू गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, काम खत्म, दैट्स इट. यू रिमेंबर ये कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने बीपीटी से प्रूव किया था. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एंड सेम वे हम क्या करेंगे अभी, सेकेंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखेंगे. यूजिंग 6.2 मतलब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मतलब ये भी पैरेलल है, ये भी मिड पॉइंट है, पी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट. हमें प्रूव करना है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. ओके, तो ऑफकोर्स कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव्स इट इज पैरेलल. कैसे प्रूव करेंगे, ए पी अपॉन पी बी कितना आता है, 1/1, एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी कितना आता है, 1/1, राइट ना, क्योंकि वो मिड पॉइंट है. देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी is equals to AQ upon QC, which mean PQ parallel to BC. That's it. बहुत easy, nothing difficult in this, right? चलो आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते. हमने ऑलमोस्ट बीपीटी कंप्लीट कर दिया है, थोड़े से कुछ क्वेश्चन रह गए. तो 9th and 10th इज लेफ्ट एंड दैट इज ऑल्सो वी हैव डन, बोथ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक ट्रेपेजियम लेना है. ट्रेपेजियम के ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ऐसे ड्रॉ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये रहा पैरेलल. इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, तो ये रहे डायगोनल इंटरसेक्ट. किया है कि नहीं बताओ ज़रा मुझे फटाफट. 100% किया हुआ. हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी. मैं बोलता हूँ आपको बीपीटी कोई ज़रूरत ही नहीं है इस केस में. ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी करने के लिए बीपीटी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, आप सिमिलैरिटी से भी करते हो, देखो कर सकते हो, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. वाई टू अननेसेसरी कंस्ट्रक्ट, ऐसे कंस्ट्रक्शन है इसका, यू रिमेंबर दैट, ऐसे कंस्ट्रक्शन. लेकिन यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है इन केस इफ़ यू यूज़ सिमिलैरिटी. हमें ये तो थोड़ी बताया जाएगा कि बीपीटी से करो या कोई भी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट, है ना. तो इफ इट इज़ पॉसिबल टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल सिमिलर, विच इज़ वेरी 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 सिंपल, दैट इज ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी विथ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस इफ यू राइट, इजंट इट. एंगल एंड अल्टरनेट एंगल है ना, दोनों अल्टरनेट एंगल ए टेस्ट से ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है. साइड्स इन प्रोपोर्शन, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ, राइट. अभी जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे इंटरचेंज करके लो, मतलब सी ओ उधर चाहिए बी उधर चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं. ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी, मतलब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा. ये हो गया मेरा आंसर डन. सी एस एस टी, यू रिमेंबर दिस. तो दिस बिकम्स वेरी 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 सिंपल, बराबर है ना, राइट है ना. सो इन दिस मैनर बीपीटी की कोई इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बेसिकली. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, आगे हमें एग्जैक्टली उसका उल्टा करना है. उल्टा करना है मतलब क्या करना है, अरे ये क्यों आ रहा है बीच में बार बार. उल्टा करना है मतलब क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है या फिर ट्रेपेजियम प्रूव करना है. तो चलो हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं. उसके डायगोनल्स मैंने ज्वाइन कर दिए एट ओ पॉइंट में. आई नो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी. इससे भी हो सकता है, ये टू साइड्स इन प्रोपोर्शन है ऑफ दिस पर्टिकुलर शेडेड रीजन. देख लो टू साइड्स इन प्रोपोर्शन है. कैसे प्रोपोर्शन है, ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब अच्छा ये सेम ट्रायंगल को कैसे सी ओ को इधर शिफ्ट करते हैं. ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी. एम आई करेक्ट नो, चेक कर लो, बी ओ अपॉन ओ डी. तो
तो अभी ये कैसे बात बन रही है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर टू ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होने के लिए दो साइड से इनफ नहीं है, एक एंगल भी चाहिए। तो इमेजिन करो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वर्टिकली वी ओ ए, या फिर ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी करो इफ़ यू वांट। तो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हाउ इज द एंगल? तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी विच इज अल्टरनेट एंगल, एंड इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हाउ द लाइन्स आर पैरेलल। काम खत्म, दैट्स इट। सो वेरी सिंपल। नहीं समझ में आया, इमेजिन करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन आप इस रिवीजन में कोई भी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपको 100% बता सकता हूँ। तो वेन एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इवन आफ्टर वॉचिंग इट सेकेंड टाइम, प्लीज़ कमेंट इट, आई विल जस्ट गिव यू द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सेम, या फिर आई विल सॉल्व इट कम्प्लीटली एंड सेंड इट टू यू, नो प्रॉब्लम। इसका 10th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन बोथ वी हैव सॉल्व यूजिंग बीपीटी एज वेल, ओके। ऑफ कोर्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑल्सो वी हैव सॉल्व इन आवर वर्कशीट। एक बार गो थ्रू करो इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मे बी सिमिलैरिटी, ठीक है ना। सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। तो कुछ क्वेश्चन अननेसेसरी है इसमें। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट। तो आपके ये जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको भी देखते रहो, देखते जाओ, बहुत सिंपल होते हैं एंड बहुत ईजीली सॉल्व आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो देख के लो। एग्जाम्पल नंबर 8 रिमेंबर, ओके। सो ट्राई टू नो दैट क्वेश्चन, अदरवाइज सेंड इट टू मी, आई विल जस्ट गिव यू द सिंपल आंसर फॉर दैट। थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी, तो ये रहा आपका पहला वाला सेक्शन, सिमिलर है क्या नहीं है ऐसे हमें देखना है। चलो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को देखना है। तो पहला वाला तो 100% सिमिलर है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, 8 ऐसे ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, द फर्स्ट वन। सेकंड वन मे बी सिमिलर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ 2 का, ये देखो 2 का ये डबल है, ये 3 का डबल है, और ये 2.5 का डबल है। तो रेशियोज आर मतलब साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, तो देयरफॉर दिस आर आल्सो सिमिलर। ये भी सिमिलर है, ये एस टेस्ट से सिमिलर है। लेकिन ये सिमिलर होने के लिए थोड़ा सा करस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि वियर्ड करस्पॉन्डेंस है। चलो देखते हैं फिर करस्पॉन्डेंस कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वी हैव ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का नाम लिखो, है ना, वो तो इक्वल है, करेक्ट है। ए बी सी लिख लिया, इज सिमिलर टू ए बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, देखो यहाँ पे दिख रहा है ए बी इज प्रोपोर्शनल क्यू आर, और यू कैन राइट आर क्यू। अब इन दोनों में से एक करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है ये हमें ढूंढना है। नेक्स्ट वन लिख लो पी, यहाँ पर भी लिख लो पी, जो भी बचा है अभी चेक करो करेक्ट है क्या। बी सी इज करस्पॉन्स टू आर पी, यस हो गया। ए सी इज करस्पॉन्स टू पी क्यू, हो गया। तो ये गलत है और ऊपर वाला सही है, दैट्स इट, ठीक है, डन। थर्ड वन बिल्कुल भी क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि 2 का ये डबल है, 3 का ये डबल है, लेकिन ये 2.7 का डबल नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट। नेक्स्ट वन देखते हैं, देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड इन प्रोपोर्शन है क्या देखना है अभी, जस्ट चेक करो। 2.5 का ये डबल है, ये 5 का डबल है, 100% ये एस टेस्ट से क्या है, सिमिलर है। देख लो एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, राइट, एंड एक एंगल इक्वल है, दैट्स इट। इसमें देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो 100% हम कंसिडर कर सकते हैं कि दो साइड्स इन प्रोपोर्शन है, क्योंकि 2.5 का 5 डबल है, 3 का 6 डबल है, लेकिन एंगल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। एंगल भी इक्वल है, लेकिन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स विच आर गिवन प्रोपोर्शनल, सो इट इज़ नॉट सिमिलर। इज दिस क्लियर? एंड नेक्स्ट वन भी हमें लग सकता है कि ये सिमिलर नहीं है, लेकिन ये 80 है, ये 70 है, ये 30 है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, कैन वी फाइंड दिस एंगल? Yes, this angle is 30 degree. If this angle is 30, don't you think that two angles of this two triangle is equal to the two angles of the other triangle, and therefore this is also similar? Okay, clear? I just hope you understood it. हम आगे जाते हैं, फटाफट आगे जाते हैं। सिमिलरिटी के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन आज नहीं करने वाले। हम लोग इजी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन विल कीप इट असाइड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। हमें एंगल फाइंड करना है कंसिडरिंग द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखते हैं
आपको यहाँ पे फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस पे जब आप फोकस करोगे, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, वो तो क्लियर है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। डी इज इक्वल टू बी, देख लो ये जो डी है ये बी के साथ इक्वल है। करस्पॉन्डेंस देखो, डी इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए, इट इज़ लुकिंग लाइक अ अल्टरनेट एंगल, है ना। बट ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, याद रखो ऑलवेज। तो ठीक है, ये 125 हो गया। आप लोग ये फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और मे बी एंगल सॉरी लीनियर पेयर, राइट। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, मुझे लगता है 55 आ सकता है। ये एंगल 55, 70 तो दिया हुआ है। कैन यू फाइंड दिस क्रॉस वाला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंड बाकी ऑल एंगल्स यू कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंगली। जो भी एंगल इक्वल है, जो मैंने अभी भी बताया, यूजिंग दैट यू कैन फाइंड आउट ऑल अदर एंगल्स। ठीक है, जो क्रॉस है वो तो ए है, जो डॉट है वो तो बी है, एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलरेडी इक्वल है। दैट्स इट। ये अभी हमने किया थर्ड क्वेश्चन, ये ट्रेपेजियम वाला, यू रिमेंबर दैट, मेकिंग दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी बोला था कि कोई भी मेथड यूज़ करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते, कम ऑन, नेक्स्ट वन। ये फोर्थ क्वेश्चन, नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है डिफिकल्ट है, सडनली एग्जाम में याद नहीं आता है, तो मैं बस याद दिलाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन है, डायग्राम यही था डायरेक्टली। देखो, एंगल 1 इज गिवन इक्वल टू एंगल 2, ये इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का मतलब होता है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये तो क्लियर हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या फिर आप साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, वी आर गिवन दैट के क्यू आर, ये क्या हो गया इसको, जस्ट अ मिनट, आई थिंक ज़रा ज़्यादा लोड आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो पी आर की जगह पे मैं पी क्यू डाल सकता हूँ, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, राइट। ये क्लियर है, क्यू टी अपॉन पी क्यू। देखो अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो क्यू आर ये कंप्लीट अपॉन क्यू एस मतलब ये वाला साइड, क्यू टी मतलब ये कंप्लीट अपॉन क्यू पी मतलब ये वाला साइड। देख लो, डू यू थिंक कि टू ट्रायंगल जो हमें दिख रहे हैं उसके दो साइड्स इन प्रोपोर्शन है 100% है, एंड एंगल 1 इज कॉमन एंगल। देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स इट। वी हैव SAS टेस्ट, सॉरी, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट्स इट। बस ये याद रहना ज़रूरी है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड। ओके, ये थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने लायक क्वेश्चन है। चलो, एस एंड टी आर द, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। तो कोई भी एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एस ऑन पी आर, ओके ठीक है, एस ऑन पी आर एंड टी ऑन क्यू आर, ठीक है, टी ऑन क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू, मतलब ये जो एंगल है इज इक्वल टू आर एस टी, एस टी को ज्वाइन कर दो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, तो हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। एक कॉमन एंगल है और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, काम खत्म हो गया, है ना, दैट्स इट। अरे RTS दिया हुआ है, सॉरी RST बोल रहा था मैं, तो कोई बात नहीं यार, RTS मतलब वही होगा। ये एंगल इक्वल है और एंगल आर कॉमन, दैट्स इट, वही चीज़ है। तो ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है बाय AA टेस्ट, है ना, सिंपल। ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड लगता है। कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ है, ओके, एंड आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। तो कॉन्ग्रुएंसी में कैसे होता है, साइड्स आर इक्वल, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AC CPCT एंड AE इज इक्वल टू AD। ठीक है, अभी हम लोग इसका रेशो लेंगे, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने किया हुआ है। इसका रेशो लेते हैं, AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD। रेशो लिया मतलब क्या आ गया, टू साइड्स इन प्रोपोर्शन, एक कॉमन एंगल आ गया, ट्रायंगल हो गया सिमिलर, फिनिश्ड, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें।
ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर रखा था, यू रिमेंबर दैट। ऐसे वाला डायग्राम था, ये डायग्राम देख लो एक बार, ये डायग्राम है 7th क्वेश्चन का, ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। चलो देखते 1 बाय 1। APE AEP, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, AEP, ये रहा AEP एंड CDP, एंड ये छोटा पिल्लू CDP, ठीक है। 90 डिग्री एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल, AATS ट्रायंगल सिमिलर। कोई डिफिकल्टी? 100% नो, राइट। नेक्स्ट वन ABD ABD ये वाला, एंड CBE मतलब ये वाला, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, CBE ये वाला, ठीक है। दोनों में 90 डिग्री है एंड एंगल भी कॉमन एंगल, फिनिश्ड। ए टेस्ट किया हुआ है हमने ये भी। चलो AEP ये वाला AEP एंड ADB ओके, ये वाला भी, मतलब यहाँ पर भी वही है। देखो ये एक 90 डिग्री है, समझते क्या, देखो ये 90, अरे यार देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 है एंड कॉमन एंगल, सॉरी ये कॉमन एंगल वो नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल है एंड दूसरा ये ट्रायंगल है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ओके, तो कॉमन एंगल ये रहा एंड ये 90 एंड 90। PDC, चलो देखते हैं PDC, ये वाला PDC छोटा वाला, एंड BEC, इट सीम्स BEC ये वाला, तो वही है 90 डिग्री एंड कॉमन एंगल C इन बोथ द ट्रायंगल्स। AATS से काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, डन, क्लियर। तो दैट्स इट। 8th क्वेश्चन आज के लिए इतना ही करेंगे, लास्ट वाला 8th करेंगे, उसके बाद कल करेंगे बचे हुए चीज़ें, ठीक है। तो फास्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ना, लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो रहा है मतलब मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, 100% आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, एक पैराग्राम ड्रॉ करना, ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन है। ए इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ABCD, ठीक है। ए इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस, ओके, AD को प्रोड्यूस करो और E ड्रॉ करो, कोई भी कहीं भी हो, एंड देन BE intersects CD, okay, BE intersects CD at point F, so that ABE मतलब ABE ये वाला कंप्लीट वाला इज सिमिलर टू CFP मतलब इस ट्रायंगल को, ये नॉन शेडेड वन इज सिमिलर। तो कुछ नहीं, सिंपल है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये एंगल इज इक्वल टू एंगल अल्टरनेट एंगल, हो गए दो ट्रायंगल एंगल्स इक्वल, AATS से ट्रायंगल सिमिलर। ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, आई टोल्ड यू नो, इन केस इफ़ यू वर्कशीट आप लोग कंप्लीट करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ये मैं ले रहा हूँ रिविजन, सो दैट इट शुड नॉट हैपन दैट ट्रायंगल के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही आपको पता नहीं कि कौन से थे। So I'm just showing you कि all the things we have done, only thing is that I'm expecting you to properly prepare। तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा एक्सरसाइज होगा, मुझे लगता है ये 2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कौन सा वाला? 6.2 एंड 6.1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6.2 एंड 6.3 फटाफट से कंप्लीट करो। ट्रायंगल आई नो दैट कि MCQ आएगा तो कुछ भी वियर्डली आ सकता है, सो कंसिडरिंग दैट फटाफट ये टेक्स्ट बुक कंप्लीट करके हमें MCQs पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, ट्रायंगल के लिए स्पेशली, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, कंप्लीट करना मत भूलना, ट्राई टू डू इट प्रॉपरली, सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट, सॉल्व इट वेरी नाइसली। ऐसे मत सोचो कि MCQ है तो चल जाएगा, कैसे भी लिखा तो चल जाएगा, बिल्कुल भी मत करना ऐसे, क्योंकि आपको वैसे भी बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक से रिवाइज करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।